online classes of SGUI. Students, in my previous class, I completed the chapter factorization. Okay. Today, I am going to start the new chapter, which is chapter number 6 of your book, and the chapter is simultaneous linear equations. Okay. Now, firstly, what is linear equation? What is linear equation? Now, an equation of the form ax plus by plus c is equals to 0, where a, b and c are the real number, and x and y are the variables. Okay, students? And the variables x and y having the degree 1. Okay? X and y variables with each with degree 1. Okay. Now, firstly, what is degree? Student, degree is the power of variable. Okay. Here, the actually degree is the highest power of variable. Here, the degree of x is 1, means power is 1, and y is also 1. Okay. Then, this is the general equation of linear equation. Linear equation में आपकी जो highest power होगी वो कितनी होगी 1. Then the general equation is ax plus by plus c is equals to 0. And if we have such type of two equation, okay, first is a1x plus b2y plus c1 is equals to 0, where a, b, c are the real number, ये कोई भी number हो सकते हैं. And second is a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. Then these two equations are together called simultaneous linear equation. Okay? ये आपकी क्या होगी? Equation. Clear? Now, in this chapter, we learn about how to solve these two equations. Solve means, in this case, we find the value of x and y. Students, if we have any equation, for example, 3x plus 2y minus 5 is equals to 0. Okay? If we put x is equals to 1 and y is equals to 1. In this equation, we get 3, 1 plus 2, 1 minus 5 is equals to 0. 3 plus 2 minus 5 is equals to 0 means 5 minus 5 is equals to means we get 0. Okay? Then, here we can say that x is equals to 1 and y is equals to 1 is the solution of this equation. Is the solution of this equation. Why this solution? Because after putting the value we get RHS which is 0, we get 0. Okay? Then these two values are the solution. Then in this chapter we can learn how to solve these two simultaneous equations. Now there are three methods. Okay, students?
Now the method of solving simultaneous equations. Okay. The first is method of eliminating by substitution. Okay. And the second is method of equity. The method of elimination by equating coefficient. And the third is method of cross multiplication. Okay. So these are the three methods. With the help of these three methods, we can solve any two linear equation, and we can find the value of variable x and y and so on. Now I discussed one by one all these methods. Now the first method is method of elimination by substitutions. Okay. In this method, firstly we have a question. Solve the following equation. The question is solve the following equation. Students, in exam, if in question you have given that use this method, then you have to use this type of method. But if the question is only solve the following equation, then you can use any of method. Okay. Now the question is solve the following equation by elimination by substitution. Okay. And the equation are x plus y is equals to 7, and the second equation is 3x minus 2y is equals to 11. Okay. Now let's see the solution. The method is substitution. नेम से क्लियर हो रहा है. सब्स्टिट्यूशन मतलब आपको दो इक्वेशन गिवन होंगी. You have two equation and you find the value of x or y, any of one variable. किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी किसी भी एक इक्वेशन से, और उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करनी होगी. क्लियर? नाउ लेट्स सी. We have x plus y is equals to 7. Here, if we can find the value of x, which is 7 minus y. This is equation number 1 and this is equation number 2. Okay. Now put the value of x in equation
minus y minus 2y is equals to 11. Then now multiply it. 7 3s are 21 minus 3y minus 21y is equals to 11. Okay. Then this is 21. Here is minus 5y is equals to 11. Then 5y is minus 5y is equals to 11 minus 21. Then 11 5. This is 21. Okay. Then y is equals to 2. When we get the value of y, we put this value in equation number 3. Okay. In equation 3. Then x is equals to 7 minus y means 7 minus 2. We get 5. X is equals to 5. Then this is the substitution method. In this method, what will we do? Firstly, we find the value of one variable from any one of the equation. Okay. And put this value in the second equation. Okay. When we put this value in the second equation, we get this equation equation have only one variable. As you know that if the equation has only one variable, then we can easily solve this equation. Then after putting the value, we solve it and we find the one variable, and again this one variable in the equation, in this equation. Okay. Now let's see the next example. Okay students, the next question is solve the following pair of linear equations using method of elimination by substitution. Okay. And the equation are these. This is the question of exercise 6a and question number 9 of your book. Okay. Now, firstly we solve these two equations and arrange it. Okay. Let's see the solution. What will we do? The equation number 1, if we multiply 2x minus 6 plus 3y minus 15 is equals to 0. Then equation become 2x plus 3y and minus 15 and minus 6 is minus 21. 2x plus 3y is equals to 21. This is equation number 1. Now solve this equation, which is 5x minus 5 plus 4y minus 16 is equals to 0. Then 5x plus 4y minus 16 plus 5 is 21 is equals to 0. Then 5x plus 4y is 21. This is equation number 2. Now the next step is we find the value of variable. Okay, from any of one equation. Here 2x plus 3y is equals to 21. Then if we find the value of 2x, then 2x is equals to 21 minus 3y. Then x is equals to 21 minus 3y upon 2. Okay, from the equation number 1. Now put this value of x in equation number 2, means in second equation. Then in equation number 2, after putting we get 5, 21 minus 3y. The value of x is 2 plus 4y is equals to 21. Okay. Now solve it. When we multiply, it becomes 5. 5 2s are 10 minus 15y upon 2 plus 4y 21. Now after taking the LCM, actually we multiply both sides by 2. Then we multiply both sides by 2. Then this 2 is cancelled out. Here it becomes 8y. Then 105 minus 15y plus 8y is equals to 42. Okay. And 15 and this is 8. We get 15 minus
7y is equals to 42 minus 105. Then minus 7y is equals to, when we subtract 5 minus 2 is 3 and this is 6 minus. Then y is equals to, when we cancel out it, we get 9. The value of y is 9. Now put the value of 9 here. We get y is equals to 9. Now put this 9 here. Put the value of y is equals to 9. Then x is equals to 21 minus 3 into 9 upon 2. Okay. Then x is equals to 21 minus 27 by 2 means minus 6 by 2 means x is equals to minus 3. Okay. Then the answer is, your answer is x is equals to minus 3 and y is equals to 9. This is your answer. Okay. Now let's see the next question. Student, the next question is x upon 6 plus y upon 15. This is the question number 14 of your book, and x upon 3 minus y upon 12 is equals to 3 by 4. Okay. Now let's see the solution of this question. Firstly, we solve this question, this equation. Okay. Now we take the LCM. The LCM of 15 and 6. What is the LCM of 15 and 6? This is 30. Okay. Now 6 5s are 30. This is 5x plus 15 2s are means 2y is equals to 4. Then equation become 5x plus 2y. When we multiply it, it become 120. This is equation number 1. Now solve this equation. Actually, student, when we have this type of equation or another type, then we solve it and we form the type. We can solve and change this equation in this form. Okay. Now solve it. Here the LCM is 12. Then 4x minus y is equals to 4 4s are 16. 16 plus 3, 19 by 4. Okay. Now 4 1s are 4. 4 3s are 12. And when we multiply 19 into 3, we get 4x minus y is equals to 19 into 3, 57. This is equation number 2. Now we can easily solve these two equations. What will we do? We firstly we find the value. Now here we solve this equation. Okay. Here the value of y is y minus y is equals to 57 minus 4x means y is equals to 4x minus 57. मैंने आपसे कहा था कि आप दो में से किसी भी इक्वेशन से वैल्यू निकाल करके दूसरी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं. ओके. नाउ पुट दिस इक्वेशन वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1. Why in equation number 1? Because we use equation number 2 for the value of y. मैंने y से वैल्यू निकाली है, means 2 से वैल्यू निकाली है तो हम 1 में रखेंगे, जब 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे. Then 5x plus 2y, the value of y is 4x minus 57 is equals to 120. Okay. Now solve it. 5x plus 8x minus, okay, 5 plus 8x is equals to
plus 140. Then 13x is equals to 4, 3, 2. Clear, students? Now the value of x is equals to 234 divided by 13. 13 बन जाए 13. We get 104. 13 is a 104. Then we get the value of x is 18. Okay, 18. Now put this value in y. Then y is equals to 4x, 4 into 18 minus 57. Then y is equals to, multiply it, 72 minus 57, we get y is equals to 150. Now the x value of x is 18 and value of y is 15. Okay, students, with the help of these questions you can easily solve the exercise 6a of this chapter, chapter number 6. That's all for today. We will continue this chapter in my next class, and thank you so much. Hello students, welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. Today's my topic is rotation and revolution. This is related with the history chapter of 9th ICSE. Now, in my previous video, मैंने आपको बताया कि what is rotation. मैंने बताया there are the two movements of the earth. The first is rotation and the second is revolution. In rotation, Earth around its own axis in 24 hours. जैसे कि हमें बताया कि अर्थ जो है अपना एक रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट करती है, और इन्हीं रोटेशन से डे एंड नाइट होते हैं, जिसमें मैंने आपको इल्यूमिनेशन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन भी बताया था कि किस तरीके से डे और नाइट को जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन डिवाइड करता है उसको हम लोग सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं. सो द रोटेशन कॉजेस डे एंड नाइट. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज रेवोल्यूशन. द सेकेंड movement of the earth is called revolution. So जब तक मैं आपको रेवोल्यूशन पढ़ाऊं उसके पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आज मैं आपको पढ़ाऊंगी, कोरोलिसिस इफेक्ट क्या होता है, क्योंकि ये भी हमारे अर्थ में लगता है. कोरोलिसिस इफेक्ट, जिसमें दो तरह के हमारे जो है वो फोर्स होते हैं. द फर्स्ट फोर्स इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड द सेकेंड इज सेंट्रीपिटल फोर्स. दिस तो सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स, ये दो फोर्सेस मैं आपको बताऊंगी. सबसे पहले मैं बताऊंगी कि ये कोरोलिसिस इफेक्ट क्या होता है. सबसे पहले जो कोरोलिसिस इफेक्ट था इसको डिस्क्राइब किया था 1935 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गस्ताव कॉर्नस. ठीक है, इन्होंने सबसे पहले इस इफेक्ट को जो है वो डिस्क्राइब किया था. इसमें उन्होंने बोला कि ऑल मूविंग बॉडीज, मतलब जितनी भी मूविंग बॉडीज है, मूविंग का मतलब मोशंस है, विंड्स है, जो बराबर मूव करते रहते हैं. तो अर्थ में जितनी भी मूविंग बॉडीज है वो जो कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में अगर है, जितनी भी मूविंग बॉडीज नॉर्थ हेमिस्फीयर में, हेमिस्फीयर यू ऑल नो, मैंने बार बार बताया है, इक्वेटर डिवाइड करती है नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर. तो जितनी भी नॉर्थ हेमिस्फीयर की जितनी भी जो है मूविंग बॉडीज है, वाटर बॉडीज या ओशंस या विंड्स जितनी भी है, दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द राइट. दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द राइट. इसको हम लोग जो है वो डायग्राम से भी समझेंगे. लाइक दैट, मान लीजिए ये हमारा, हमने इसमें नदर्न हेमिस्फीयर को यहाँ पर क्लियर किया हुआ है. अगर ये नदर्न हेमिस्फीयर है तो देखिए जितनी भी मूविंग बॉडीज हैं, जो भी हमारी मूविंग बॉडीज होंगी वो हमारी देखिए राइट में, दिस इज द राइट, तो ये हमारी राइट में डिफ्लेक्ट करती है, राइट में मूव करती है, क्योंकि रोटेशन भी देखिए हमारा ऐसे जा रहा है वेस्ट टू ईस्ट. तो ये क्या करेंगी, जितनी भी नॉर्थ की है, नॉर्थ हेमिस्फीयर की, वो सारी राइट में टुवर्ड्स द राइट जो है वो डिफ्लेक्ट करती है. बट एंड लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर. और इसी तरीके से मैं आपको उससे बता दूंगी कि सदर्न हेमिस्फीयर में अगर होगा लाइक दैट, इट्स सदर्न हेमिस्फीयर, तो ये क्या करेंगी, अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं तो
तो दैट इज ये लेफ्ट में, ये जो है हमारी ये लेफ्ट में हमारी जो है वो टुवर्ड्स द लेफ्ट जो है ये मेरे हमारी डिफरेंट करेंगे। तो ये जो हमारी ये जो होता है ये किस वजह से होता है, ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये जो है वो आगे होता है। ठीक है, तो आपको दो चीजें समझ में आई कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से कॉर्निसेस इफेक्ट पड़ता है, जो कि जिसको कि फर्स्टली डिस्क्राइब किया था गस्टव कॉर्निस ने। ओके, एंड नाउ अ फोर्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द एक्सिस। अब देखिए मैं इसको आपको ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को पूरा एक डिस्क्राइब करूंगी। अ फोर्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द एक्सिस, क्यों? क्योंकि ये एक्सिस से आगे जा रहा है ऑफ द रोटेशन। जैसे कि हम एक लाइक स्पिनिंग टॉप, अगर हम किसी एक स्पिनिंग टॉप को देखते हैं तो वो कॉज करता है अ बल्ज एट द इक्वेटर, वो इक्वेटर से घूमता हुआ है, जो बीच में उसके बल्ज होता है। बल्ज का मतलब होता है जब भी हम किसी जो है इस चीज को देखेंगे तो ये जो चीज होती है बीच की, दैट इज कॉल्ड द बल्ज, ये बल्ज होता है। तो जो बल्ज है वो इक्वेटर है, तो इक्वेटर से ये क्या करता है, स्पिनिंग करता है और एक बल्जेस को कॉज करता है। तो ये हो गया हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एंड नाउ द सेकंड इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ये बैलेंस करता है, ये वो फोर्स है, इट बैलेंसेस द फोर्स दैट इज पॉसिबल फॉर ए रोटेशन। मतलब कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो हमारा जो रोटेशन होगा उसको हम बैलेंस नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल का मतलब होता है जब वो अंदर की तरफ वो फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो बाहर की तरफ लगता है और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जो अंदर की तरफ लगता है। जैसे कि अगर हम मान लीजिए 10 पैकी के सर्कल है और ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक मान लीजिए हमने थ्रेड लिया और थ्रेड से हमने किसी चीज को इसमें बांधा, तो क्या होता है, ये अगर ये ऑर्बिट ना हो, ये लास्ट ये अगर हमारी जो है वो बाहर की लाइन ना हो तो क्या होगा, ये चीज बाहर निकल जाएगी। जैसे मान लीजिए हमारी अर्थ है तो ये या तो इधर की तरफ भागेगी, यहाँ पर हम आएंगे तो इधर की तरफ जाएगी, यहाँ आएंगे तो हम इधर की तरफ जाएगी। बट क्योंकि ये हमारी ऑर्बिट है अर्थ की, तो वो इसी में ही अगर उसको जो है वो अराउंड करना है तो वो यहीं पे ही अराउंड करती रहेगी और बाहर नहीं निकलेगी। अगर उसको बाहर निकलने का मौका मिलेगा तो फिर वो अपने डायरेक्शन में जाएगी। तो इट इज कॉल्ड centripetal force or this is the centrifugal force. That is the difference between the centripetal and the centrifugal forces. I think आपको समझ में आया होगा। And now अब ये हमारा रोटेशन हुआ। And now the what is revolution? The second movement of the earth is called revolution. The revolution is the motion of the earth along its elliptical orbit around the sun. बार-बार मैं बता रही हूँ कि ऑर्बिट अपनी ऑर्बिट में जैसे जब अर्थ जो होती है वो सन के चारों तरफ अपनी ऑर्बिट में ही जो है मूव करती है, लाइक दैट, दिस इज द सन, और ये ऑर्बिट हो गई और ये हमारी अर्थ हो गई। जब इस तरीके से और अर्थ जो है वो अपने सिर्फ ऑर्बिट पे, तो वो यहाँ पे अपना रोटेशन भी कंप्लीट करती रहती है और ऐसे करके ये पूरा राउंड भी लेती रहती है। अब इसको टाइम क्या लगता है, 365 1.4 डे लगता है, मतलब कि 365 तो पूरा लगता है और 1/4 डे भी लगता है। इसीलिए जब 1/4 जब 4 इयर्स में ये 1/4 आपस में ऐड हो जाते हैं तो वो एक दिन बन जाता है, और जो वो डे बनता है उसको हम लोग लीप ईयर करते हैं, जो कि हमारी फरवरी के मंथ में 28 होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो 29 जो है डेज हम लोग फरवरी में काउंट करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड अ लीप ईयर। ठीक है, एंड नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, पेरिहीलियम एंड एफिहीलियम। अब ये एफिहीलियम और पेरिहीलियम क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो डिस्टेंस है हमारा अर्थ से जो है वो सन से अर्थ का, वो है मान लीजिए 150 मिलियन किलोमीटर। हमारी जो अर्थ है ये मेरा हमारा सन है, दैट इज, ठीक है, तो ये हमारा 150 मिलियन किलोमीटर है। तो अब देखिए मैं पहले बताऊंगी कि पेरिहीलियम क्या है। पेरिहीलियम क्या होता है, अराउंड और नियर, जब जो अर्थ होती है वो सन के पास होती है, अराउंड का मतलब उसका डिस्टेंस कम होता है। जैसे कि जनवरी 3rd, जब जनवरी 3rd आता है ठीक है 147 किलोमीटर, जैसे मान लीजिए दिस इज द अर्थ, ठीक है, ठीक है, तो ये जो हमारा जो है ये हमारा हो गया 147 मिलियन किलोमीटर्स, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इट इज अ पेरिहीलियम, क्योंकि ये नियर है, इट इज पेरिहीलियम, ठीक है। और ये देखिए ये आपका डिस्टेंस ज्यादा है, तो इट इज 157 जो मैंने बताया एपीहीलियम, इसको हम लोग बोलते हैं अवे फ्रॉम।
जब ये सन से दूर हो जाती है। तो ये जुलाई 4 में होता है और ये जैसे कि 152 मिलियन किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये हो गया पेरिहीलियम एंड इट इज एपिहीलियम, ओके। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पेरिहीलियम एंड एपिहीलियम। अब यहां पर अगर अर्थ है दिस एंड नाउ अब डिस्टेंस बताते हैं। फिर स्पीड, व्हाट इज द स्पीड? स्पीड में है वेलोसिटी ऑफ स्पीड ग्रेटेस्ट एट पेरिहीलियम। जो रेवोल्यूशन की जो स्पीड है, रेवोल्यूशन की, जैसे कि हमने रोटेशन में पढ़ा था कि रोटेशन की जो स्पीड थी 1670 किलोमीटर्स पर आवर, वो पर आवर थी, पर आवर में, जिसमें कि हमने आपको अर्थ का सर्कमफ्रेंस भी बताया था 40077 किलोमीटर्स है, जिसमें कि 1670 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से अर्थ हमारी रोटेट करती है। अब रेवोल्यूशन की जो स्पीड है वो वेलोसिटी जो स्पीड होती है इसकी, तो वेलोसिटी स्पीड जो होती है वो ग्रेटर होती है कहां पर? जहां पर पेरिहीलियम होता है। जहां पर पेरिहीलियम होता है यहां पर वो ग्रेटेस्ट हो जाती है, स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और जहां पर एपिहीलियम होता है वहां पर इसकी स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है। अब हमने ये पढ़ा रेवोल्यूशन के बारे में। अब हमारा, तो आज मैंने आपको कॉर्निसिस इफेक्ट, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल और रेवोल्यूशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स बताए। एंड नाउ दैट इज ऑल फॉर टुडे, बट इन माय नेक्स्ट वीडियो I will explain you about the effects of revolution and the inclination. I will explain you again the inclination, the effect of inclination. It's also very important. And the last topic is seasonal changes. And most probably, if possible, I will also explain the summer solstice, the winter solstice, and the equinoxes. So that's all for today. Thank you and have a nice day. हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कक्षा 9 आईसीएसई बोर्ड विषय हिंदी के अंतर्गत बच्चों, मैंने अपनी पूर्व के वीडियो में आपको पत्र लेखन बताया था। मैंने पत्र की परिभाषा के साथ साथ पत्र
विनाशक रेल दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। उनके बाद घर में आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है। मेरी माताजी सहकारी गोदाम में छटाई का काम करती हैं और उनकी बहुत ही सीमित आय यहाँ लिखेंगे आय है। घर में मेरी एक छोटी बहन व बूढ़ी दादी जी हैं। मैंने कल ही सूचना पट पर यह सूचना पढ़ी कि आप योग्य व जरूरतमंद विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दे रहे हैं। एक बार बच्चों पुनः इसके विषय को आप देखिए, क्या लिखेंगे महोदय, फिर लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मैंने पिछली कक्षा की परीक्षा में विद्यालय में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए और विद्यालय भर में प्रथम स्थान पाया। मैंने भाषण और निबंध प्रतियोगिता में न केवल विद्यालय स्तर पर बल्कि अंतर विद्यालयीय स्तर पर भी अनेक पुरस्कार प्राप्त किए। फिर पैरा चेंज करेंगे, इसके बाद बच्चों लिखेंगे महोदय, मेरे पिताजी की छत्रपुर की विनाशक रेल दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी। उनके बाद घर में आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है। मेरी माताजी सहकारी गोदाम में छटाई का काम करती हैं और उनकी आमदनी बहुत ही सीमित है। मेरे घर में मेरे अलावा मेरी एक छोटी बहन व बूढ़ी दादी जी हैं। मैंने कल ही सूचना पट पर यह सूचना पढ़ी कि आप योग्य व जरूरतमंद विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दे रहे हैं। इसके उपरांत बच्चों आगे जो लिखेंगे वो इस प्रकार होगा। पैराग्राफ चेंज कर देंगे आप और लिखेंगे अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी योग्यता एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। बच्चों इसके बाद आप बाईं तरफ लिखेंगे धन्यवाद और धन्यवाद के बाद संबोधन का चिन्ह लगाएंगे। इसके उपरांत बाईं तरफ लिखेंगे आपका
आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी शिष्य। बच्चों, परीक्षा के दौरान जब भी हम पत्र लेखन कर रहे होते हैं, उस समय ना तो हमें अपना नाम लिखना चाहिए और ना ही अपना रोल नंबर लिखना चाहिए, बल्कि हम क्या लिखते हैं, आपका आज्ञाकारी शिष्य, सा। इसके उपरांत बच्चों आप क्या डालेंगे, दिनांक, और दिनांक में आप लिखेंगे 4/7/2020। बच्चों, दिनांक आप कोई भी डाल सकते हैं, क्योंकि जिस डेट को मैं आपको ये वीडियो पढ़ा रही हूँ, ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ, मैंने वही डेट यहाँ पर क्या कर दी है, डाल दी है। तो बच्चों, आपको मैंने आज क्या बताया, प्रार्थना पत्र। बच्चों, पत्र लेखन के अंतर्गत औपचारिक पत्रों के प्रकार में मैंने एक प्रकार आपको बताया था, संपादक के नाम या प्रकाशक के नाम पत्र। आज इस वीडियो में मैं आपको दूसरा पत्र जो लिखवा रही हूँ वो है प्रकाशक के नाम पत्र। तो सबसे पहले मैंने विषय लिखा हुआ है। आप किसी पत्रिका के नियमित ग्राहक बनना चाहते हैं, पत्रिका के प्रकाशक से पत्र लिखकर पूछिए कि पत्रिका का वार्षिक मूल्य क्या है और आपको वह पत्रिका क्यों पसंद है। विषय क्या बताया बच्चों, कि आप किसी पत्रिका के नियमित ग्राहक बनना चाहते हैं, पत्रिका के प्रकाशक से पत्र लिखकर पूछिए कि पत्रिका का वार्षिक मूल्य क्या है और आपको वह क्यों पसंद है। तो बच्चों, औपचारिक पत्र के अंतर्गत जब हम इस तरह के पत्र लिखते हैं तो शुरुआत किधर से करते हैं, बाईं ओर से करते हैं। तो सबसे पहले लिखा जाएगा मुख्य प्रबंधक। सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, मुख्य प्रबंधक, फिर क्या लगाएंगे, कॉमा। इसके बाद किस प्रेस से वो पत्रिका निकलती है, तो मान लो प्रेस है दिल्ली प्रेस, तो आप क्या लिखेंगे, दिल्ली प्रेस। और फिर इसके बाद क्या लगेगा बच्चों, कॉमा लगेगा। इसके बाद लिखेंगे पता। पता के अंतर्गत झंडे वाला एक्सटेंशन, झंडे वाला एक्सटेंशन नई दिल्ली, और इसके बाद लिखा हुआ है पिन। बच्चों, कई जगह पत्रों में हमें पिन कोड लिखने की जरूरत पड़ती है ताकि हमारा पत्र जो है आसानी से जिस तक हम पत्र पहुंचाना चाहते हैं उस तक पहुंच जाए। इसके बाद बच्चों यहीं पर आप दिनांक डालिए, और दिनांक चूंकि आज जैसा मैंने भी बताया था कि आज 4 जुलाई है, तो मैंने यहाँ पर 4 जुलाई लिखा है, तो 4 जुलाई 2020। इसके बाद बच्चों, औपचारिक पत्र के अंतर्गत फिर क्या लिखा जाता है, विषय। तो आप क्या डालेंगे, विषय। और विषय में क्या लिखेंगे, पत्रिका का नियमित ग्राहक बनने के संदर्भ में। आप किस संदर्भ में पत्र लिख रहे हो, कि आप किसी पत्रिका के नियमित ग्राहक बनना चाहते हैं, तो आप विषय में क्या लिखेंगे, पत्रिका का नियमित ग्राहक बनने के संदर्भ में। इसके बाद बच्चों आप लिखेंगे महोदय, और महोदय के बाद बच्चों यहाँ पर क्या लगेगा, कॉमा लगेगा। अब इसके बाद आप लिखेंगे, मैं सफदरगंज इनक्लेव का निवासी तथा आपके द्वारा प्रकाशित पत्रिका सरिता का तथा आपके द्वारा प्रकाशित पत्रिका सरिता का नियमित ग्राहक बनना चाहता हूँ। बच्चों, यहाँ आप कोई भी पत्रिका का नाम लिख सकते हो, ग्राहक बनना चाहता हूँ। कृपया पत्रिका के वार्षिक मूल्य, वार्षिक मतलब साल भर पर की कीमत, पत्रिका के वार्षिक मूल्य तथा सदस्यता लेने के बारे में जानकारी दें। लेने के बारे में क्या दें, जानकारी दें। मुझे यह पत्रिका, चूंकि यहाँ पूछा गया कि आपको यह पत्रिका क्यों पसंद है,
और धन्यवाद के बाद संबोधन का चिन्ह लगता है। कहीं कहीं बच्चों यहाँ पर कॉमा भी आपको लगा हुआ मिलेगा। इसके बाद क्या हेडिंग डालेंगे, भवदीय। और भवदीय लिखेंगे, ये मैंने भवदीय लिखा है। और भवदीय आप जब लिखोगे तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि एग्जाम टाइम या परीक्षा के दौरान जब हम पत्र लेखन करते हैं तो उसमें हम अपना नाम या रोल नंबर नहीं लिखते। तो भवदीय में भी आप क्या लिखोगे, बा सा। और इसके बाद बच्चों आप जो है अपना पता लिखोगे। सपोज दैट कल्पना कीजिए कि मैंने ये पता लिखा 1507 काकादेव कानपुर नगर। और इसके बाद आप अपना क्या लिख सकते हो, पिन कोड भी लिख सकते हो। मान लो काल्पनिक मैंने यहाँ लिख दिया 20/14। ठीक, तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। आज मैंने इस वीडियो में आपको 2 पत्र लिखने बताए। पहला पत्र कौन सा बताया मैंने आपको, पहला पत्र मैंने प्रार्थना पत्र बताया और दूसरा पत्र मैंने प्रकाशक के नाम पत्र लिखना बताया। तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ